Okay, ji. Now today we'll start this electromagnetic spectrum. By definition, this is the combination of two words, electro and magnet. Electro stand for charges or electricity, and magnetic stand for magnetic field or magnets. So by definition, electromagnetic spectrum are electric and magnetic disturbances that transfer energy from one place to another place. इसका मतलब ये है कि if we take the electric field in one direction and magnetic field in another direction, M stand for magnetic field, E stand for electric field. So when one oscillation of electric and magnetic field completed, oscillation matlab to and fro motion, like is that, or up and down motion. So when electric and magnetic fields are moving at right angle, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड की एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, so both of them will produce a packet of energy. और पैकेट ऑफ एनर्जी जो होती है वो वेव की फॉर्म में होती है, एक क्रेस्ट आता है और एक ट्रफ आता है. This specific amount of energy in the form of wave, this is called electromagnetic radiations. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इनकी जो स्पीड होगी, all these electromagnetic waves travel with a speed 3 into 10 raised power 8 meter per second. And electromagnetic waves do not transfer matter. इनमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता, मतलब फिजिकल मीडियम कोई चीज नहीं आगे जाती, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है. So the energy they transfer depends upon the wavelength of the waves. अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन कलेक्शन ऑफ रेडिएशन. इसमें बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं, जिनकी नेचर ये होती है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करवाती हैं, मैटर को ट्रांसफर नहीं करवाती, और इनकी स्पीड जो होती है सबकी 3 into 10 raised 8 मीटर पर सेकेंड होती है. और इनकी वेव लेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी वेव कितनी एनर्जी ट्रांसफर करवाएगी. अगर कोई वेव जैसे रेडियो वेव्स हैं जिनकी वेव लेंथ ज्यादा होती है, वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ, तो जिनकी ज्यादा वेव लेंथ होगी वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करवाएंगी. ऑन द अदर हैंड गैमा रेडिएशन, इनकी वेव लेंथ सबसे कम होती है, तो ये सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर करवाएंगे. सो light is one of the family of radiations called the electromagnetic spectrum. Some types of electromagnetic radiation are used to transmit information such as computer data, telephone calls, and TV signals. So these radiation can use for different purposes. ओके जी, इसके आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं.
Okay, next is this. As you can see, these are the 7 radiations: gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible light. Visible light further डिवाइड होती है तो वो 7 कलर्स बनाती है, जिसको आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर उसके बाद इंफ्रारेड आती हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एंड लास्ट में रेडियो वेव्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियो वेव्स की वेव लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, वेव लेंथ सबसे ज़्यादा उसकी, और फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे कम होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड इसकी गैमा रेस की वेव लेंथ सबसे कम है और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। राइट बच्चे, ये समझ आ गया आपको? Yes, sir. एज यू कैन सी, ये वेव लेंथ इसकी आपको जो नजर आ रही है, दिस वन गैमा रेस की, ये वेव लेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव्स की वेव लेंथ सबसे ज्यादा है। अब जहाँ पे वेव लेंथ कम हो जाएगी, ऑब्वियसली उनकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, जबकि जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। जबकि स्पीड जो है सबकी सेम रहेगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनी क्वेश्चन? No, sir. Oh, now we move to the next. Now we see the types of electromagnetic waves and their uses. ये यूजेस बच्चे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि ये 1-2 नंबर के लाजमी आते हैं। So if we see the radio waves, this can be used to measuring speed and distance in a radar. It can also be used to broadcast radio and television signals. Microwaves used for heating food. Infrared rays used in heat-sensitive thermal imaging cameras. Visible light can be used to make lasers to use in surgery, and ultraviolet rays used in fluorescent tubes, and X-rays can be used to view inside of the objects and bodies. And gamma ray finally used in medicines to kill cancer cells. So you have to learn these uses of different radiations. Okay, now we will solve MCQs. ये MCQs देखें, ये आपका अक्टूबर-नवंबर 2002 में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि विच डायग्राम शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक चीज और सुन लें, मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बताता हूँ टू मेमोराइज दिस ऑर्डर, कि आप किस तरह से ये इस ऑर्डर को याद कर सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं। ये देखें, आपके पास ये बेसिकली कितनी रेडिएशंस हैं। नंबर 1, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट,
X-rays, and then gamma rays. These are 7 radiations which make this electromagnetic spectrum. इसके लिए आपने ये सेंटेंस याद रखना है, ये आप लोग एक साइड पे बेशक लिख लें. राना महमूद इफ्तिखार. Iftikhar's vision usually exceed gamma rays. ये सेंटेंस आप याद करें. राना महमूद इफ्तिखार विजन यूजुअली एक्सीड गैमा रेस. अब देखिए कैसे, इसका मतलब क्या है. राना मीन रेडियो वेव्स. सबसे पहली वेव जो आएगी वो रेडियो वेव्स हो जाएंगी. दिस वन. महमूद माइक्रोवेव्स. दिस वन. इफ्तिखार इंफ्रारेड. दिस वन. Iftikhar's vision, V, visible light. This one, visible light. Usually ultraviolet. This one. Exceed में हम X को देखेंगे. X rays, gamma rays. G stand for this. So what is the sentence? Rana Mahmood Iftikhar's vision usually exceed gamma rays. अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर याद हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. जा रही है? Mm-hmm. ओके गुड. अब हम इसको आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसका ऑर्डर. ओके बच्चे, अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें देखें सबसे पहले, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है. रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स रेज. अब आप वो सेंटेंस अपने जहन में रहे. राना महमूद इफ्तिखार, RMI. तो इसका मतलब है ये फर्स्ट, इसमें माइक्रोवेव्स नहीं है. आई आ रही है, विजिबल आ रहा है, यूजुअली एक्सीड, दैट इज पॉसिबल. इसमें रेडियो के बाद अल्ट्रा आ गया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस में भी पॉसिबल. बाकी भी ऑप्शन चेक करते हैं पहले. ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 3 में एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा एंड रेडियो. लेकिन इसमें एक चीज है कि रेडियो की वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा आ रही है. फर्स्ट जो ऑप्शन थी उसमें एक्स रेज की वेवलेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि ए इज नॉट पॉसिबल. ए, बी इज नॉट पॉसिबल, सी और
डी को देखते हैं। राना मोहम्मद इफ्तिखार, आर आई एंड फोर्थ में अल्ट्रा आर है, तो उसका मतलब ये हुआ कि these options are not possible. B, A and B. Only the C is the right option. ठीक है बेटा, ये इस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे आपने सॉल्व। Okay, एनी sir. क्वेश्चन? No. ठीक है।